हिंद महासागर में भारत की सीमा के करीब अमेरिका ईरान के युद्धपोत आइरिस डेना को डुबो दे, क्या भारत को चुप रहना चाहिए? ईरान के विदेश मंत्री ने डेना पर हुए हमले के बारे में ट्वीट किया है। लिखा है कि अमेरिका ने ईरान की सीमा से 2000 किलोमीटर दूर समुद्र पर हमला किया। फ्रिगेट डेना भारत की नौसेना की मेहमान थी। उस पर 130 सेलर सवार थे। बिना किसी चेतावनी उन पर अंतर्राष्ट्रीय पानी में हमला कर दिया गया। मेरे शब्दों को याद रखिए, अमेरिका ने जो मिसाल कायम की है, एक दिन उसे इस पर अफसोस होगा। ईरान के विदेश मंत्री ने अपने ट्वीट में भारत की चुप्पी को लेकर कुछ भी नहीं कहा। इस मसले पर आपको हमारा वीडियो पूरा देखना चाहिए। काफी कुछ नए सिरे से जानने और समझने के लिए मिलेगा। भारत खुद को हिंद महासागर का अभिभावक कहता है, तो क्या इस नाते भारत को आपत्ति नहीं जतानी चाहिए कि अमेरिका ठीक उसके पड़ोस तक में आकर ईरान के युद्धपोत को डुबो गया? आपत्ति ना सही, क्या अफसोस जताने की स्थिति में भी भारत नहीं है कि जो युद्धपोत उसका मेहमान बनकर आया, उस पर सवार 180 लोगों में से बड़ी संख्या में लोग मारे गए, नौसैनिक, जिनका कुछ दिन पहले तक भारत की सड़कों पर स्वागत किया जा रहा था। यह तस्वीर 19 फरवरी की है। तब ट्रंप ईरान पर हमला करने की धमकी दे चुके थे। उसके बाद भी ईरान की नौसेना के प्रमुख एडमिरल शहरम ईरानी भारत आए और भारत के नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी ने उनसे मुलाकात की। क्या इस दोस्ती के नाते भी भारत को अफसोस नहीं जताना चाहिए था, चुप ही रह जाना था? भारत अगर अमेरिका की आलोचना नहीं कर सकता तो अपने मेहमान के मारे जाने पर अफसोस तो जता सकता था। अफसोस जताने से भी क्या संबंध बिगड़ जाते हैं? तब फिर इन विदेशी संबंधों में क्या बच गया है? फिर तो भारत को शामिल ही हो जाना चाहिए इस्राइल और अमेरिका के साथ युद्ध में। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह बात हैरान करती है कि भारत ने अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की। वाईफाई कट होते ही ऑटोमेटिक फोन का डाटा गेम से कनेक्ट कर लेगा। साथ ही साथ जाइरोस्कोप मूवमेंट से गन चलाना और भी आसान हो गया। और सबसे मजेदार प्राइम आई आ रहा है, जहां पे यू गेट 4 एबिलिटीज: बैरियर, टेलीपोर्ट, हील एंड करप्टिंग फ्लाश। One of the challenges which I faced were for all my recipes, the items were imported. Almost 80% of the things were not available in Tinsukia, and for decor part 100% was not available in Tinsukia. So this is where Amazon business was a game changer. The decor, the foosball table, the books, the lights and everything, the ease of ordering was really great. Like I could just scroll through Amazon business and order all those things. I had no knowledge about how kitchens work. Me and my chef went through all the products which were available in Amazon business, like all the different brands of sushi sheets, and we tried them and we came up with the one which is perfect for our brand. In America, the burgers are made through that butter rollers. I firstly showed them to my nearest vendors and they were like, you have to wait like 15-20 days. Price might be a bit higher because of the delivery charges and all, but in Amazon business I got them delivered like in 4-5 days, even if we are like a remote city. When I was ordering those electric deep fryers and the taiyaki makers, the prices were super low. Taiyaki maker, I was really surprised, like how is it available in Amazon? So after Tinsukia I had a lot more experience and I knew that I could trust Amazon business for my expansion. I feel really proud that at Devil's Burger everyone visits, like from families to students and obviously anime fans. They love our food here. When we came to Guwahati, people wanted something premium, so I was thinking like boba teas and matcha lattes and all. The raw material for boba tea, it's not available in Assam, and even if it's available, it's really like costly. I just ordered them in Amazon, and there's this option for bulk orders where you can reduce the prices when you order in bulk. It's really beneficial for lots of young entrepreneurs like me who are starting their journey.
it makes me super excited and super motivated that I'm able to like give a good competition to all the other big giants. Davis Burger has become a vibe, which was always my dream. गांधी ने ट्वीट किया कि दुनिया एक वोलेटाइल चरण में प्रवेश कर गई है, आगे तूफानी समुद्र है, भारत की तेल सप्लाई खतरे में है, हमारे तेल आयात का 40% हिस्सा होर्मुज से आता है, एलपीजी और एलएनजी के हालात और भी खराब है, यह लड़ाई हमारे बैकयार्ड में आ गई, ईरान का एक युद्धपोत हिंद महासागर में डूबा है, फिर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। ऐसे समय में यह जरूरी है कि स्टीयरिंग व्हील पर एक स्थिर हाथ हो, मगर भारत के पास एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सरेंडर कर दी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी स्वायत्त फैसले लेने वाले नहीं बल्कि समझौते में झुक जाने वाले नेता हो गए हैं। यह भारत में ईरान का दूतावास है, यहाँ पर खामेनेई की तस्वीर के साथ एक शोक पुस्तिका रखी है। दूतावास ने लिखा है, जो संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, खामेनेई के प्रति सम्मान जताना चाहते हैं, वे आकर किताब में लिख सकते हैं। इस पुस्तिका पर सबसे पहले रूस के राजदूत डेनिस ओलिपोव ने शोक व्यक्त किया है। सुहासिनी हैदर ने पूछा है कि भारत की तरफ से इस पर कौन शोक व्यक्त करेगा। यह तस्वीर 2024 की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली स्थित ईरान दूतावास जाकर ईरान के राष्ट्रपति रईसी के निधन पर शोक पुस्तिका में अपनी संवेदना लिख रहे हैं। क्या इस बार जयशंकर वहां जाकर शोक पुस्तिका में लिखने का साहस कर पाएंगे? भारत ने खामेनेई की हत्या की निंदा नहीं की, अफसोस नहीं जताया, संवेदना नहीं जताई। ईरान के मिनाब शहर में स्कूली बच्चियों के ऊपर इसराइल और अमेरिका ने बम गिराया। ज्यादातर की उम्र 7 से 12 साल के बीच थी। 165 बच्चियों की मौत हुई। भारत ने इन सब की भी निंदा नहीं की। भारत का मेहमान बनकर आया था आयरिस डेना, उसमें 180 लोग सवार थे, ज्यादातर मर गए। भारत उसके लिए अफसोस नहीं जता पाया। निंदा छोड़िए, अफसोस जताने की स्थिति में नहीं। इस पर सोचिए कि हम विदेश नीति का कौन सा स्वर्ण युग देख रहे हैं। अमेरिका की सोचिए, उसे भारत की रत्ती भर परवाह नहीं। जब मर्जी टैरिफ लगाता है, उसके पड़ोस में आकर उसी के मेहमान को मार जाता है। भारत का नाम विदेशों में खराब कर दिया। इस बात को लेकर हर समय विपक्ष पर हमला करने वालों के पास इसका जवाब है कि भारत के पड़ोस में उसके मेहमान युद्धपोत को अमेरिका ने डुबो दिया और भारत बोल तक नहीं पाया। क्या इससे विदेशों में और भारत में ही भारत का नाम खराब नहीं हुआ, नाम हो गया? इस घटना ने एक बार फिर से भारत की कूटनीतिक कमजोरी को और गलत को गलत कहने के नैतिक साहस को एक्सपोज कर दिया। भारत चूक गया। हर दांव पर यही लगता है कि भारत अब चुप रहने वाला देश होता जा रहा है। Coming up with Pennant number